Okay, so I think we are going to start with the next chapter, that is complementary angles. आज ये खत्म कर देते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, इट्स नॉट वेरी बिग. अब ये जब मैथ्स का ये मैराथन खत्म होगा ना, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स में हीट है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल हो गया अपना, तो पीरियोडिक टेबल के बाद क्या है? गैस लॉज है, क्या है? हाइड्रोजन या ठीक है. सो उस पर फोकस करेंगे. For now, for today, we'll finish this chapter, complementary angles. Do you have any idea about what are complementary angles? नाम सुना भूल गया सर. I think I have studied. I know I have studied complementary angles. Sorry? Complementary angles पहले भी आए थे शायद. Yeah, but what are complementary angles? कौन बताएगा? Dhani. Sir, which are from 0 to Wait, Krish. Krish, next time you want to answer, raise your hand. Because what happens is you answer and these other students, they're just sitting like that. all right. Nobody speaks up. I want them to speak up. Dhani, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है. ओम विल टेल मी. Can't hear you. Can't hear you. Sir, now. Yeah, Om. Can't hear you, Om. Om, please fix your microphone. I will come back to you. Prajakta, Yes, sir. please tell me what are complementary angles. Sir, the two angles with sum is 90. Very good. Two angles who add up to 90 degree are known as complementary angles. लिख लो पहले, ये बहुत लोग भूल चुके हैं. Sir, now can you hear me? Two angles whose sum is 90 degree. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Om, I can hear you now. Example दो मुझे ओम, complementary angles के. Sir, 45 degree plus 45 degree. Very good. 45 degree, comma 45 degree. ये हो गया एक एग्जाम्पल. दूसरा, Sir, 60 degree and 30 degrees. 60 and 30. Very good. और कोई? Sir, 70 degree plus 20 degree. So there can be how many complementary angles? Many. There can be many complementary angles. Only requirement is their sum should be 90. तो ऐसे जितने भी पेयर्स ऑफ एंगल्स है जिसका सम 90 डिग्री है, उन सबको कौन सा एंगल बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. Complementary. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया. तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो ज्योमेट्री की बात है, राइट? दिस इज द मैटर ऑफ ज्योमेट्री.
ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पे आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सो यू शुड नो दैट किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, हाँ चालू है, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, सपोज ये x है, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच विल बी दिस? अनन्या, अनन्या, Yes, sir. how much will be angle C if this is 90, if this is angle A is x, how much will be angle C? Ananya, Sir, it will be X only. Ananya, use angle sum property beta. Sir, it will be 90. अरे 90 ये है, एक ट्राइंगल में दो 90 नहीं हो सकते. Angle B is 90, angle A is x. How much will be angle C? एंगल सम प्रॉपर्टी पता है तेरे को अनन्या? Yes, sir. टेल मी व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? Ananya, it should be tip of the tongue. I'm not giving you time to think. If I'm telling you what is 1 plus 1, will you take a pause or will you take No, instantly? हाँ यही है 1 plus 1 वाली बात है. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है AC square is equals to बेटा? AB square plus एक BC मिनट square. एक मिनट एक मिनट, तुम पाइथागोरस थ्योरम बता रही हो मेरे को. आई एम आस्किंग यू अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल. चलो लेट्स गिव चांस टू समबडी एल्स. महंत 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 ओम. Sir, Yes. sir, three angles which can add 180 degree. Which can add 180 degree. क्या बोल रहा है? Sir, Three means the angles of a addition of triangle. Three angles of a triangle who add up to 180 degree. Whose sum is 180 degree. ठीक है? तो यहाँ पे तीनों एंगल है हमारे पास A, B और C. शायद एक मिसिंग है, C मिसिंग है. yes sir. तो उसको ढूंढ सकते हैं ना हम लोग. हाँ sir. महंत, प्लीज हेल्प मी फाइंड इट. महंत, यू आर लॉग्ड इन फ्रॉम टू डिवाइसेस और दोनों के कैम में, एक के कैम में तू दिख रहा है, दूसरे के कैम में कुछ और दिख रहा है. अभी नहीं, वो फ्रीज हो गया है शायद. ठीक है छोड़ दे महंत, मुझे बता. sir, angle A plus angle B is plus C is equal to 180 degree. हाँ, एंगल ए कितना है, X एंगल बी कितना है 90. और एंगल सी नहीं पता है, राइट? इनका सम 180 है. अनन्या ध्यान से देखो, राइट? तो एंगल सी कितना होगा? 180 माइनस 90 माइनस एक्स, दैट इज 90 माइनस एक्स. सही है? सो वही Yes, पूछ sir. रहा था ना मैं. एंगल सी कितना है अनन्या? कितना है एंगल सी? 90 minus X. ओके ओके, एंगल सी इज 90 माइनस एक्स. तुम्हें एक चीज समझ में आई? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट करो इसको. इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, in a right angled triangle, two angles, two acute angles, two acute angles are always complementary. Two acute angles are always complementary. In a right angled triangle, two acute angles are always complementary. तुम्हें समझ में आया? ये एंगल ए है वो x है,
और एंगल सी है 90 माइनस एक्स। ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल टू एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा तुमने? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द टू एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज Yes, कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड एंगल इज द राइट एंगल, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। जो बाकी के दो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं। इनका कोई भी मेजर हो सकता है, बट हमेशा इनका सम 90 होगा, याद रखना। ऑलवेज देयर सम विल बी 90। ये समझ में आया तुमको? ठीक है, अब देखो मैं बहुत ही यूनिक चीज बताने वाला हूं तुमको, एंड दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? कैन यू फाइंड साइन ऑफ एंगल ए in terms of the sides? Sine of angle A will be equal to sin x. Can you find it? yes, sir. Yeah, how much is it? Oh, Sir, BC upon AC. Opposite upon hypotenuse, that is Sir, BC not like upon that, AC. right? You have to find it like that. Sorry? I thought you needed the magnitude. There is no magnitude. How you can find the magnitude of sin x? You don't know any sides, na? Yes, So sir. only ratio you can give is trigonometric ratio. So cut over, Okay, sir. right? ठीक है, साइन है साइन एक्स BC अपॉन AC आ गया। अच्छा, अब मैं तुम्हें मैजिक मोमेंट आ गया यहाँ पे, ध्यान दो। साइन सी निकालो, साइन सी, आई एम सॉरी, साइन सी नहीं, कॉस सी निकालो। कॉस सी क्या होगा? कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। BC upon AC. कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सी का एडजेसेंट है BC, हाइपोटेनियस है AC। तुम्हें समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने क्या बोला? किसी Sin भी theta राइट is एंगल, equal to cos theta. नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। Okay, yes. साइन थीटा और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 In माइनस every sum we इन have got एवरी 90 ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो एक्यूट एंगल होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। Okay, so because they are complementary, they will be smaller than 90, they each will of be them. they will be acute, they will be smaller than 90, but their sum will be 90. Their sum will be 90. They will be complementary. Yes. And sine of one of the angle is equal to cos of the other angle. दोनों acute angle के बीच का relationship है। Sine of one of the acute angle is equal to cos of another angle. चलो और एक चीज ढूंढो मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे एक लिख दो, एक स्टेटमेंट लिख दो, therefore sin x is equal to cos of 90 माइनस एक्स। ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसमें x की जगह, x इज एन एंगल, ओके, x की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, x की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल की बात कर रहे हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है चैप्टर का। अच्छा, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने तुम लोग को आई थिंक 2 हफ्ते पहले एक शेड्यूल दिया था फॉलो करने के लिए। कितने लोग कर रहे हैं? रेज योर हैंड रिलीजियसली। प्राजक्ता, धानी और अनन्या का हाथ ऊपर नहीं है। So I don't have idea about any schedule. वर यू एब्सेंट ऑन दैट डे? Maybe yes. व्हाट अबाउट अनन्या? Sir, actually sometimes I follow, but sometimes I'm not able to. व्हाई? Sir, actually I go down to play badminton. इज दैट इम्पोर्टेंट?
No, sir. But as you told it at the timing as 7 to 8, that time only. So, but And why then the if other schedules are not to be followed? Do you do self study every night before going to sleep? sir, I do it in the afternoon only. Okay. Do you get enough time for your self study and practice? Yes, sir. And do you complete your homework on time? Yes, sir. If Okay. I have it like of Hindi and maths, then I do it. Because other subject I have homework like completion of notebook and that's only. Okay. So basically, you don't have any other issues. So, so you are following the schedule. What is the problem? Yes, sir. I'm following that type of, but not as strict as you said it. Okay. Yeah. But see, you can do things your way at your time, but don't compromise with regular practice and self study. Yes, sir. What about you, Dhani? What about you, Dhani? I'll follow from today. Sorry, I'll follow from today. from today. Why is it your birthday today? आज क्या ऐसी रोज खास बात है? ठीक है. Something needed to be done from my side so that you can follow the schedule. Let me know. So which schedule but It is a daily schedule. सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई कितने बजे करनी है, होमवर्क कितने बजे करना है. That is a very basic daily schedule. If you want, we can Sir, talk about it. Yes, Krish. actually I shifted the timing of the self-study at night because at night, even if you have your dinner, even if you have your time at from 7 to 8, you're enjoying time or you go down, at 9:30 to 10:30 you're very exhausted and you couldn't study. I felt that and I shifted the timing No to problem. 5:30 to 6:30. It is your issue, Krish. But the Yes, marks sir. you have Same. scored in English, Krish. The Yes, sir. marks you have English was scored very in low. English should improve. You do it from 7 to 8, you do it from 9 to 10, you do it in the morning, it is your problem. If you are scoring less marks, that means there is no self study. You shift the time, no problem. You improve the marks, show me the score, I am happy. ठीक है, but do it. ठीक है, that is the idea. Anything to be needed to be done from my side, you just let me know. ठीक है, मुझे बोला गया क्यूमुलेटिव टेस्ट लेना है, चलो ठीक है, वो भी ले लूंगा मैं. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव टेस्ट लिया मैंने, नोबडी स्कोरिंग गुड मार्क्स, कुछ भी घटिया मार्क्स लेके आ रहे हो तुम लोग. ठीक है, अगर ये बात है तो फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं नहीं करूंगा वो. इसलिए इफ यू स्टिक टू द शेड्यूल, यू विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन टाइम, यू विल बी सबमिटिंग होमवर्क्स ऑन टाइम, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर मेजर टेस्ट. लास्ट टर्म में जो तुम्हारी हालत थी ज्योमेट्री में, मोस्ट ऑफ द बच्चों की, मैं क्रिश का नाम नहीं लूंगा, उसका ज्योमेट्री अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्रिश का दूसरे प्रॉब्लम्स है. तो ओवरऑल जो मैंने स्ट्रगल देखी है तुम में, you guys were not ready for cumulative tests. Now I feel that since we are going in a good speed, we can do it. And now that we have decided to do it, I want all of you to be ready. ठीक है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं सरप्राइज नहीं दे रहा हूँ, ना मैं इम्पोज कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग विथ यू दैट नाउ वी कैन डू इट. राइट, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे ये दोनों एंगल्स के बारे में, x एंड 90 माइनस एक्स. तो मेरे को बताओ कि व्हाट इज tan a, बेसिकली tan x. C BC upon AB. AB. BC upon AB, opposite upon adjacent, BC upon AB. ठीक है, ओके, BC upon AB. What is cot A, sorry, cot C, which is cot of 90 minus x. BC upon A. So cot is adjacent upon opposite, which is BC upon AB. तो इससे और एक फॉर्मूला मिला,
दिख रहा है तुम्हें फॉर्मूला? tan Yes, sir. x is equal to cot of 90 minus x. दिख रहा है फॉर्मूला? ठीक है, वैसे ही तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस बना सकते हो. मैंने सिर्फ यहाँ पे साइन और कॉस और टैन और कॉट के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन तुम्हें बताए, बट यू कैन मेक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और जैसे साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वैसे कॉस ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है. तो नाउ इट इज टाइम दैट वी नोट डाउन ऑल द फॉर्मूले. ठीक है, और फिर उसके एग्जाम्पल लेंगे एंड देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस, सॉल्व देम एंड शो यू के कैसे इसको हम लोग डील करेंगे इसके साथ. ठीक है, चलो लेट्स गेट रेडी टू राइट द फॉर्मूले. ओके, सो लिखो फर्स्ट फॉर्मूला, द फर्स्ट वन, sin theta is equal to cos 90 minus theta. Second formula, cos theta is equal to sin 90 minus theta. Third formula, tan theta is equal to cot 90 minus theta. Fourth formula, cot theta is equal to tan 90 minus theta. Fifth formula, sec theta is equal to cosec 90 minus theta. And sixth formula, cosec theta is equal to sec 90 minus theta. ये फॉर्मूले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. These are not like square relations, reciprocal relation, quotient relations. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूले. These are simply your complementary relations between trigonometrical ratios. तो इससे you can take away that sin and cos are complementary of each other. Tan and cot are complementary of each other. And sec and cosec are complementary of each other. साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, इतना लिख लिया सबने? ओके, अब कुछ Yes, sir. एग्जांपल्स. नाउ सम मोर एग्जांपल्स. लुक एट दिस. ठीक है, अब देखो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूं तुमको, बहुत सिंपल. आई एम नॉट इवन गिविंग यू सम क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द एक्सरसाइज, बिकॉज आई फील दैट अगर तुम ये कर लोगे तो वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, वो भी तुम कर लोगे आराम से. Okay, so I'm writing here sin 40. ठीक है, sin 40. My idea is to convert this sin into cos. ठीक है, so तुम्हें क्या करना है? sin को cos बनाना है. कैसे बनाओगे? Can By any? No, replacing just raise your hand. Raise your hand. Okay, there are two people who wants to answer, Prajakta and Krish. और कोई? Sin को cos बनाना है मुझे.
साइन को कॉस बनाना है, फॉर्मूला यहीं पे है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें एकदम से, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये ऐसी चीज है 1 + 1 2 एकदम से आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब है तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। साइन को अगर कॉस बनाना है तो वी शुड एक्नॉलेज के साइन और कॉस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सो हम पहले क्या करेंगे, इस एंगल को ले लेंगे, ठीक है, और इस एंगल को हम लोग 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो इसको सबसे पहले we will write it as sine of 90 minus 50. Can I write like that? 40 को क्या किया मैंने, स्प्लिट कर दिया, 40 को मैंने 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिख दिया। Can I write like that? Yes. Now I will use the formula sin 90 minus theta is cos theta. Sin 90 minus theta is cos theta. You remember that formula? Sin 90 minus theta is cos theta और cos theta is sin 90 minus theta. तो 90 माइनस समथिंग तो आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही 90 माइनस समथिंग आ जाता है, साइन को हटा के मैं cos लिख दूंगा और ये जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल उसको लिख दूंगा, सो cos 50. सो sin 40 इज इक्वल टू cos 50. sin 40 इज इक्वल टू cos 50. तुम्हें सिंपली एक ही चीज करनी है, साइन को cos बनाना है ना, तो बना दो डायरेक्टली cos, लेकिन अगर ये 40 है तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 50, 50 लिख दो। डायरेक्ट कर सकते हो तुम, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन सर यस मैंने दूसरे मैंने मतलब आपने बोला उसके पहले मैंने दूसरे से किया था कि sin 40 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 40। नहीं, गलत। हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट में ही है ना, फर्स्ट अच्छा, इज द थिंग ओके ओके sin। ओके, साइन 40 इज cos 90 माइनस 40। हाँ हाँ, सही है, बिकॉज हाँ sin सही है, थीटा इज इक्वल टू, सही चलेगा है, ना? सही है, चलेगा, चलेगा, ओके वैसे सर। भी चलेगा, चलेगा, वैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर राइट। जो कृष्ण किया ना वो भी मेथड अच्छी है। सो व्हाट मैंने क्या बोला कि 40 को ब्रेकअप करो 90 और 50 में। यू कैन डू वन मोर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन डू वन मोर थिंग। अगर तुम्हारे पास और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मेरे पास है साइन 70, ठीक है, उसको तुम्हें कॉस के टर्म्स में लाना है, तो इसको तुम लिखो डायरेक्टली कॉस और फिर लिखो 90 माइनस 70, है ना, साइन 70 इज कॉस 90 माइनस 70, जो हो जाएगा cos 20. sin 70 is cos 90 minus 70 which is cos 20. क्या किया हमने, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया यहाँ पे और साइन को cos बना दिया। सो बेसिकली हम वही करते हैं, साइन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू cos एंड cos कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू साइन। चलो मैं एक तुम्हें सम देता हूँ, cos 23 डिग्रीज, इसको साइन में कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करो। Okay, Krish has got the answer. Who has got, who others? Raise your hand. Okay, Om. Yes, sir. Yes, what is your answer? Sir, sin 67. Perfect. तो तुमने क्या किया, cos 23 है, उसको तुमने लिखा sin of 90 minus 23 which is equal to sin 67। क्या सबने यही किया है, सबने यही मेथड की है? Yes. ओके, तो ग्रेट, Yes, ये sir. वाली मेथड से वी विल स्टिक टू इट। ठीक है, सीधा cos को sin बना दो, 23 को 90 माइनस 23 लिख दो, उसका आंसर यहाँ पे लिख दो, साइन के फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट। तो cos को sin बनाना और sin को cos बनाना, इज इट डिफिकल्ट, इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? नो। ओके No, sir. ओके, आगे देखते हैं। tan 42 डिग्री, इसको cot बनाना है,
tan 42 डिग्री को कॉट बनाना है। प्राजक्ता, So cot 48 degree. Yes, Cot sir. how I much? also got the same Cot answer. 48. 48. Good. So you might have written cot 90 minus 42. Is this your second step? And then you might have written cot 48 directly. Have you done that? If you have done that, then that means you have got the concept. You have got the concept. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, तीनों के आंसर मेरे को करेक्ट चाहिए। ठीक है, इसको टैन में कन्वर्ट करना है। इसको कोसेक में कन्वर्ट करना है। और इसको सेक में कन्वर्ट करना है। क्रिश, तीनों हो गए? वेरी गुड। Krish, the first one. Tan 43 degrees. Okay. So the second step would be tan of 90 minus 47. That is tan 43. Mahant, the second one. Sir, cosec 56. Okay. So इसके बाद तुमने लिखा होगा cosec 90 minus 34, which is cosec 56, right? Ananya, the last one. Yes, sir. Sec 75. Very good. तो तुमने लिखा होगा sec of 90 minus 15, which is sec 75. सही है? Good, Yes, very sir. nice. I'm very proud of you that you guys have very easily got this concept. चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब रियल क्वेश्चंस पे आते हैं। You got the concept of trigonometric conversions. अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एंड देखो क्वेश्चन बहुत कम है। We have very few questions to do. ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चंस है। Evaluate. पहला क्वेश्चन दिख रहा है, evaluate. So I'm going to take a simple question first. Let me take the first one. Cos 22 upon sin 68. इसको evaluate करना है. Cos 22 upon sin 68. This is question number 1, first sub question. ठीक है, अब देखो इसको इवैल्यूएट करने के लिए तुम्हारा जो फाइनल आंसर है ना, नंबर्स में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? नंबर्स में। यू शुड नॉट हैव एनी साइन और कॉस इन द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर नंबर्स में होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो जस्ट चूज वन टर्म, ईदर कॉस और साइन, मतलब या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, किसी एक को चूज करो। ठीक है, तो मैं चूज करता हूं न्यूमरेटर को। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट न्यूमरेटर्स कॉस इनटू साइन। न्यूमरेटर के कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो साइन में कन्वर्ट जब करूंगा तो इट विल बिकम साइन ऑफ 90 माइनस 22 अपॉन साइन ऑफ 68। डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया मैंने। अब 90 माइनस 22 होता है 68, सो दैट विल बिकम साइन 68 अपॉन साइन 68। दोनों कट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 1। दैट्स इट, हो गया, खत्म। 2 स्टेप में आंसर है, इसमें कुछ नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस आर द इजीएस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझा कैसे किया? इस चैप्टर Yes. में ना जितने भी क्वेश्चंस है उसमें मोस्टली तुम देखोगे आंसर या तो 1 है या तो 0 है। आंसर इज ईदर 1 और 0, क्योंकि सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। सो यू सी, पहले हमारे दिमाग में देख के क्या आता है कि 22 डिग्री, अरे ये तो टेबल में नहीं था, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? 68 टेबल में नहीं था, कैसे निकालेंगे? सो यू हैव टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन एंड देन सिंप्लीफाई। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू की फिक्र मत करो, ठीक है? ये सीधा सिंप्लीफाई होता है। ओके, लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। मैं यहाँ से होमवर्क में बाद में देता हूँ, चलो होमवर्क में बाद में देता हूँ तुमको। Let me not worry about the homework right now. Let me just try some more questions. Okay, let me try this one. Sec square 18 minus cosec square 72. कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। Sec square 18 minus cosec square 72. ठीक है? अच्छा देखो, जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, sec 18 the whole square minus cosec 72 the whole square. sec 18 क्या होता है? अच्छा ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। या तो sec 18 को कन्वर्ट करो कोसेक के टर्म्स में, या तो cosec 72 को कन्वर्ट करो sec के टर्म्स में, किसी एक को करना है। चलो लेट अस कन्वर्ट sec। Sir, ओके, ये I found a better option than that. या I think that might be wrong, but I'll ask you. Why can't we directly just write the square values and then convert it very वी कैन easily? डू दैट, Like I वी have कैन डू दैट। दिस इज जस्ट टू I, अवॉइड एनी कंफ्यूजन, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो सकता है स्क्वायर की वजह से। So I will also tell you that, I will also show you that, but first let me show it without the square। मतलब स्क्वायर को बाहर okay, रख के sir. मैं सिर्फ अंदर ही कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है? So let me convert sec into cosec. So sec 18 will be cosec of 90 minus 18 the whole square minus cosec of 72 the whole square, ठीक है? Cosec 90 minus 18 is cosec 72 the whole square minus cosec 72 the whole square। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, cosec square 72 minus cosec square 72 which is 0, ठीक है? तो ये मैंने स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा? ताकि तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्क्वायर होने से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने स्क्वायर के साथ ही किया होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट इन द एंड योर आंसर इज 0 ओनली, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम यू हैव एनी स्क्वायर and you have these kind of angles and you have to use complementary relationships, don't be worried about the square, just do it directly with the square। square के साथ ही solve कर सकते हो। the answer is 0। मैंने क्या बोला था? या तो आंसर 1 आएगा या तो 0 आएगा, है ना? रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे तुम, देखो आंसर क्या आता है। कभी कभी ऐसा होता है या तो 2 आता है या 3 आता है, कभी कभी, रेयरली ऐसा होता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता, ठीक है? लेट्स डू let's do this one। 2 tan 53 अपॉन cot 37, cot है ना? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th।
Can you tell me the question? Question number second का 4. Yes, sir. Just a second. Yes. Oh, yes, sir. Second one, fourth part. 2 tan 53 2 tan 53 upon cot 37 cot 37 is plus minus cot 80. minus numerator में Yes, cot 80 in the cot numerator. 80 Upon tan 10. tan Tan 10 10. degree. Okay, that's it. Yes, sir. Okay, so let me ask you guys. प्राजक्ता क्या करेंगे? स्टेप्स बताओ. So first we will change it into cot Who? Change who into cot? numerator. Okay, so you want to change the numerator, that is tan 53 into the terms of cot, right? Okay, चलो ठीक है. So जैसे प्राजक्ता बोलते हैं वैसे करते हैं. 2 ब्रैकेट ओके tan की जगह मैं डायरेक्टली cot लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. So cot of 90 minus 53 upon cot of 57 degrees minus cot of 80 degrees upon tan 10. ओके बताओ cot 90 minus 53 कितना होता है? cot 57, right? Upon cot 57. What about in the second bracket? Sir, cot So 37 37. upon cot 37. 90 minus 53. Oh 37, sorry. दोनों 37 है, मैंने 57 लिख दिया. या 37. सेकेंड फ्रैक्शन में क्या होगा प्राजक्ता? So we will change the denominator. We'll change the denominator. Okay, so cot 80 upon cot of 90 minus 10, right? So यहाँ पे ये कट जाएगा and we'll get 2 minus ये हो जाएगा cot 80 upon cot 80, ये भी हो जाएगा 1. The answer will be 1. Easy. Second Yes, का sir. 4th. Yes. Please note it down if you haven't. Okay. Let's try third का first one. Third का first. Tell me the question when I need it. Question number 3 part 1. क्या है? Tan Tan 10 okay degrees. Tan 15. okay Tan 75. Tan 80 is equal to 1. ये प्रूव करना है क्या? Show that. Show that. Prove. Okay. So जब भी show that या prove that आता है, take LHS. Take LHS. Now see, you have tan 10 and you have tan 80. ठीक है, इनमें से किसी एक को तुम रेसिप्रोकल कर दो. इनमें से किसी एक को तुम रेसिप्रोकल कर दो. तो मैं tan 10 को रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये बन जाएगा 1 upon cot 10. और ये जो tan 80 है ना, इसको मैं साइड में लिखूंगा बट cot के टर्म्स में. सो cot ऑफ 90 minus 80. समझा क्या किया मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया एज इट इज और मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लिया.
सेम थिंग यू हैव टू डू विद द अदर टू टर्म्स. ये tan 15 का रेसिप्रोकल कर दो 1/cot 15 मल्टीप्लाइड बाय tan 75 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो cot ऑफ 90 माइनस 75. ठीक है, सो ये हो जाएगा cot ऑफ 90 माइनस 80 विच इज cot 10 अपॉन cot 10 multiplied by cot of 90 minus 75 which is cot 15 upon cot 15. ठीक है, ये कट हो जाएगा and the LHS will be 1 which is equal to the RHS. Did you understand कैसे किया मैंने, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. Sir, can you explain this again? Did you understand that I converted tan 10 into 1 upon cot 10? Because tan is the Yes. reciprocal of cot, or cot is the reciprocal of tan. And here, here tan 80, do you see tan 80? I converted into cot of cot 10, cot of 90 minus 80. मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से कॉट में कन्वर्ट कर दिया. सो आई गॉट टू टर्म्स, वन इन न्यूमरेटर वन इन डिनोमिनेटर, एंड बोथ आर इन टर्म्स ऑफ कॉट एंड दे गॉट कट एज यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, अच्छा tan 15 दिख रहे थे तुम? tan 15 को मैंने लिखा 1 upon cot 15 और tan 75 को मैंने लिखा cot of 15, cot 90 minus 75. तो ये भी एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में आ गया, कट हो गया, सब कुछ कट होके 1 बच गया. सो कहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करना है, कहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करना है, ये तुम्हें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए. इफ यू convert everything into complementary, you will not get the answer. You have to simplify, और simplify करने के लिए एक टर्म न्यूमरेटर में और एक टर्म डिनोमिनेटर में होनी चाहिए और दोनों सेम होनी चाहिए. So how you have to convert what, that depends on the question itself. हमेशा एक रूल नहीं लगता है, because this is not like a formula based thing. फॉर्मूला है लेकिन टेक्निक तो अलग अलग है ना. The technique depends on the question. सो यू कैनॉट से कि नहीं यही टेक्निक है और सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा. टेक्निक्स विल बी डिफरेंट. अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45. 0 to 45 के एंगल के बीच में रिप्रेजेंट करना है. तुम्हारा क्वेश्चन है साइन 59 डिग्रीज प्लस tan 63 डिग्रीज. मैं क्या करूंगा पता है? इफ आई वांट टू represent it as in the form of an angle which is less than 45, I will find its complement. मैं उसका complement निकालूंगा. तो sin 59 हो जाएगा cos of 90 minus 59, tan 63 हो जाएगा cot of 90 minus 63. ऑटोमेटिकली वो नंबर छोटा हो जाएगा. So this will be cos of 59, right? So this will be 31. cos 31 plus 59 is 90, and ये हो जाएगा cot of 90 minus 63. So this will be 27. Yeah. See both the numbers. If you notice, both the numbers are between 0 and 45. Do you see that? तो ये मैंने first question किया है. So complementary relationships अलग अलग तरीके से यूज होता है. It is not only that one monotonous way where you keep on doing the question. Like standard angles में it was like that, but trigonometric equations जहाँ पे आया वहाँ पे पूरा game change हो गया. Excuse me, sir. Yes. Can we get one question to try? Sorry. Can we get one question to try? You will get the whole exercise. You want to try right now? Yes, sir. Yeah, sure. Why not?
चलो ट्राई दिस. ट्राई सिक्स्थ का सेकंड वन. कम ऑन. This is for everyone. Is it done? करो करो आराम से ट्राई. So I'm going to solve this question for you. बहुत जोर से बारिश आएगा मेरे पास. बहुत जोर से. मुंबई में बारिश है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. 3 cos 80 cosec 10. 3 cos 80 cosec 10 plus 2 sec 59 sec 31. ठीक है. अब 2 sin 59 सॉरी. ठीक है. अब देखो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा. सॉरी मैं इसको कन्वर्ट करूंगा और मैं इसको कन्वर्ट करूंगा. कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन. Yes, sir. So I 3 mixed up with cos that. I 80. कैन यू हियर मी? something else. बहुत ज्यादा Yes. लाउड है यहाँ पे. 3 हाँ cos सर आपका 80. आवाज क्लियर आ रहा है. Krish, are you saying something? Yes, your voice is proper. Nothing is coming from your background. Yeah, We I can know hear it's you. raining heavily. Even I cannot hear you. But just see. देखो देखो. 3 cos 80 cosec 10 हो जाएगा 1 upon sin 10. Cosec is the reciprocal of sin. Plus 2 sin 59 times 1 upon cos 31. Sec का reciprocal होता है cos. Now convert this sin into cos and this cos into sin. So 3 cos 80 upon sin 10 हो जाएगा cos of 90 minus 10 plus 2 sin 59 upon cos 31 हो जाएगा sin of 90 minus 31. So this will be 3 cos 80 upon cos 80 plus 2 sin 59 upon sin 59. Cos 80 cut. Sin 59 cut. 3 plus 2 5. LHS और evaluate किया हमने. थोड़ा अलग है प्राजक्ता. Your method is slightly different from mine, but they are same. They are same.
So do I need to change anything? Sir cannot hear us. He just said that your and his method is slightly different, but the answer is same. Okay. Homework. Homework. होमवर्क Yes, ले लो. sir. होमवर्क ले लो. See, I'll tell you what is homework. All remaining questions from question number 1 to 6. All remaining questions. You understand, na? Yes, Krish? Can you show the done ones which we did? Yeah. So you have to do the one with I'm marking with the red one. ये homework है, ये वाले homework है. Okay. कल टेस्ट